आज हम पहुंचे हैं बायोटेक पार्क में और यहाँ पर 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। और ये वर्कशॉप जो है एआई टूल पर की जाएगी, चाहे वो एग्रीकल्चर पे हो, चाहे वो ड्रग इनोवेशंस के ऊपर हो। काफ़ी सारे छात्र जो और कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो इस जगह पहुंचे हैं और 3 दिवसीय वर्कशॉप में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ जो है इस जगह किया जा सकता है। काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ जो है वो नई सीखने को छात्रों को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट भी पहुंचे हैं और उनकी 3 दिवसीय वर्कशॉप में ये चीज़ें प्रैक्टिकल में दिखाई जाएंगी और सिखाई जाएंगी। हम लोग एग्रीकल्चर और मेडिकल लाइन में एआई का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 3 दिवसीय वर्कशॉप चलेगी और आज पहला दिन है इस वर्कशॉप का। और अथवा के बच्चे जो हैं वो भी इसमें इस वर्कशॉप में शामिल हुए हैं और बाहरी राज्य से भी कुछ छात्र जो हैं इस वर्कशॉप का हिस्सा बने हैं। पार्क कठुआ में ये चलेगी और काफी कुछ सीखने को जो है वो बच्चों को मिलेगा। रब दयाल कैमरामैन अदित्य के साथ, जय हिंद, जय भारत। पंजाब सिंध गुजरात मराठा। Dr. P.C. Pancheria, Director CSIR CD, Pilani, a distinguished scientist whose contribution to automation, electronics and AI research contribution to inspire us all. Atri, Principal GMC Kathua, whose efforts in promoting science and technology driven initiative in the region are commendable. We also extend our also I would like to extend my welcome to Dr. Saurabh Saran, Senior Principal Scientist IIIM and Principal Investigator Technology Business Incubator, whose efforts have been instrumental in nurturing innovation and entrepreneurship at IIIM. Dr. Amit Darbotra, Organizing Secretary, AID2A 2025, whose coordination and vision has shaped this event. To express our heartfelt respect and appreciation, I now invite Director CSIR IIIM, Dr. Zabir Ahmed, to kindly present a welcome bouquet to our chief guest. Now I request Dr. Saurabh GMC Kathua. Thank you. OSD for Industrial Biotech Park. Invited speakers, my colleagues, and the most important, the participants. Good afternoon, namaskar, and adab. From CSIR IIIM Jammu side and on behalf of the organizing committee, I wholeheartedly welcome everybody. Particularly, I think I was a little delayed in inviting my senior colleague, Dr. P.C. Pancheria. But I was waiting for some Human intelligence through a machine is artificial intelligence. This is the literal definition of AI. What basically it does, what human possess and how we take a decision. So, answer is that application of AI is to solve a problem, solve engineering problems through our learning, through our reasoning, through our database. So, this is the aim of the AI. Suppose a child is born and if you give a banana and tell that this is an orange, so the child will learn orange, not the banana. So, the basic step of artificial intelligence is learning. So what is learning? What you tell to learn. Because learning can be two ways. It can be supervised, it can be unsupervised also. So in supervised learning, you have to tell who is the teacher, what teachers tell. In your classrooms, your teacher tells, okay, this is the answer of this. Then you understand that, okay, this is the answer. So similarly, humans will learn through examples, learn through our previous generations, from our elders, and based on our learning, simply, today you can say this is sunny, weather is very clear. गैस ड्रग बनानी है, जीन आइडेंटिफाई करनी है,
So new drug innovation, it has a large role. And at the outset, artificial intelligence will decrease the time taken for discovery of new drugs. इसमें कितना चेंज आएगा मेडिकल साइंस में देखते हैं कि बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं और इसमें एक ट्रीटमेंट को जैसे एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है शॉर्ट टर्म में लेके आना उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉलिक्यूल्स के हैं दूसरे को न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है उसके बाद कितना ईजी हो जाएगा इससे काफ़ी आसान होगा। जब प्रिसिशन मेडिसिन आप किसी भी डिजीज़ के नाम लीजिए, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कैंसर ब्रेस्ट का हो, जीआईटी का हो, तो उसमें जीन्स आइडेंटिफाई की जाएंगी, उनकी प्रोटीन्स आइडेंटिफाई की जाएंगी प्रिसिशन मेडिसिन से हर पेशेंट में, और उनके जो उनमें जीन्स डिफेक्टिव है, जो उनके रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स डिफेक्टिव हैं, वो उनको थेरेपी दी जाएगी। इसमें अब earlier the diagnosis of the diseases was based on morphological changes in the tissues. Now the classification of diseases is based on the molecules. So now it's a molecular classification of diseases, and that will stratify the patients. Though the same patient has carcinoma breast, but they will be stratified depending upon the genes and molecules affected, and then precision therapy will be given. नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में स्टार्ट हुआ और 2 हफ्ते पहले ही हमने बायोनेस्ट इंक्यूबेटर यहाँ लॉन्च किया, जिसमें अलग अलग तरीके के इंक्यूबेशन सपोर्ट स्टार्टअप्स के लिए जो है हमने यहाँ प्रोविज़न रखा। और आज का ये जो 3 दिन का जो एक वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस जो है वो हम कर रहे हैं, AI ड्रिवन इनोवेशन इन ड्रग डिस्कवरी इन एग्रीकल्चर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। इसमें हम ये ड्रग डिस्कवरी की बात करें या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात करें, हम ये देखते हैं कि जैसे पर्टिकुलरली ड्रग डिस्कवरी में टाइम कंज्यूम बहुत होता है। एक कोई भी ड्रग का मॉलिक्यूल जो है राइट फ्रॉम लैब टू मार्केट अगर देखें तो 15 से 20 साल जो है उसमें लग जाते हैं। और AI टूल्स के ज़रिए अगर हम ड्रग डिस्कवरी जो है हम अगर स्टार्ट करें तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि ये टाइम पीरियड शॉर्टन होता है, उसके साथ साथ जो रूटीन जो करंट ड्रग डिस्कवरी का रूट है उसमें कास्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जब टूल्स अवेलेबल हैं, तो हमने ये देखा कि क्यों ना हम रिसर्चर्स को इस फील्ड में जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और जो हमारे की स्पीकर्स जो हमने यहाँ इनवाइट किए हैं उनके ज़रिए हम उनको एक नॉलेज इम्पार्ट करेंगे। जो हमारे यहाँ 3 दिन जो है पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ रहेंगे, तो ये एक यूनिक इवेंट जो है इस फैसिलिटी में हम करवा रहे हैं। इसमें रिसर्चर्स जो हैं जैसे नाइपर मोहाली से, हमारे CSIR के 2-4 इंस्टीट्यूशन से आए हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ कॉलेजेस से, हमारे इंस्टीट्यूट से हैं। मैं ये सोचता हूँ कि 10-15 इंस्टीट्यूशन से ऑल ओवर इंडिया जो है वो पार्टिसिपेशन यहाँ है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिंस ये इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में है, हमने कठुआ के 20 बच्चों को जो है फ्री एनरोल किया है। बाकी जो बच्चे हैं बाहर इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं, जो रिसर्चर्स हैं, रजिस्टर्ड स्कॉलर्स जो हैं, उन्होंने पेमेंट बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करवाया। यहाँ इस एरिया के लिए हमने बच्चों को फ्री एनरोल करवा के हम उनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। सेशन में क्या क्या इसमें रहने वाला है? इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जैसे इसका टाइटल ही है AI ड्रिवन इनोवेशन इन ड्रग डिस्कवरी एंड एग्रीकल्चर। ड्रग डिस्कवरी में किस किस तरीके से जो है किस लेवल पे, अगर हम स्क्रीनिंग को ले लें, अगर हम ऑथेंटिकेशन या लीड ऑप्टिमाइजेशन को ले लें, तो हमने एक तरफ जो है ये थ्योरेटिकल सेशन रखे हैं जिसमें हमारे की स्पीकर्स जो हैं एक्सपर्ट्स बाहर से हमने बुलाए हैं, वो एक लेक्चर्स भी देंगे। और लेक्चर्स टेक्निकल सेशन के अलावा जो है वो प्रैक्टिकल वर्कशॉप जो है इन सभी बच्चों को जो है 3 दिन जो है वो हम इम्पार्ट करेंगे।